Namaskar, good evening, and welcome to all of you from Ahmedabad. This is your guest speaker Mihir Bole, connecting to you from Ahmedabad once again in a quick succession. Thank you very much. I'm really my heartfelt thank goes to my good friend Professor Jiten Narayan, who keeps inviting me to this wonderful show, which I find some of the most illustrious academicians have been joining and sharing their ideas and wonderful views to a large number of audience across India. So this to me is a wonderful opportunity to connect with you once again. And I'm also thankful to the University, Lalit Narayan Mitra University, Darbhanga, for giving me this consecutive opportunity to connect, to reach out to you and share whatever little I understand about certain subjects. So I have been asked by my good friend Professor Jiten Narayan to speak on a very contemporary topic, which is social justice, and the topic is titled Social Justice, Perspectives and Pragmatism. So I'll be broadly touching upon two important issues. One, the first issue is about what are the different perspectives, the theoretical perspectives about social justice, without which it will be rather difficult for anybody to understand this whole debate and discussion and discourse which is going on in our society for a long time, and keeps occurring every now and then. So that is one part of it. And the second part is about the pragmatism. So one can be very theoretical, but how can you be very pragmatic, very practical? So these two issues are very, I think, to my mind, are very important. Let me also tell you that I had the opportunity to do my doctoral research on a topic which was on social justice, and the topic of my research was caste conflict and social justice. And my case study was my home state, of course, Bihar, which we always consider to be the hotbed of caste politics. And the whole idea of social justice, the movement of social justice, has also emanated from our state itself. So, well, since I also belong to, incidentally, a political family, my grandfather, late Shri Rameshwar Prasad Verma, who used to be a freedom fighter, and my father, Shri Arun Bole, who happened to be not only a scholar but also an author who has written a number of books on many serious issues. But he has also been, besides being an author, is essentially being a public activist associated with the socialist movement. So that was the background in which I grew up, and whatever little with my association with my family and my father and all host of people who used to come to my place, I could understand. That invited me to do a research on the issue of social justice, which was a hotly debated topic in Bihar. So with that, I would like to begin today's discussion. So when we talk about justice, जब हम justice की बात करते हैं तो justice की बात ही क्यों होती है? पहला सवाल तो ये है. तो justice की बात शायद इसलिए होती है क्योंकि ये दो बाइनरीज हैं समाज के. जस्टिस की बात इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता है, समाज में इनजस्टिस भी होता है. ये दो पोलैरिटीज़ हैं सोसाइटी की. एक पोल पे हमारे जस्टिस है, दूसरे पे इनजस्टिस है, और दोनों कभी मिलते नहीं है, दोनों शायद पैरेलल चलते हैं रेल की पटरियों की तरह. और ये एक अगर हम कहें एक ढंग से तो ये एक पेरेनियल समस्या है. बहुत लंबे समय से मानव समाज इससे जूझता रहा है. कई सारे इसके फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं. अगर जातियों के संबंध में देखें, जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एक जस्टिस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसके अपने मुद्दे हैं. उसमें हायरार्की का मुद्दा है, उसमें
फ्यूडल सोशल स्ट्रक्चर का मुद्दा है, उसमें असमानता का, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी का मुद्दा है, उसमें ऑपरेशन का मुद्दा है। ऐसे कई सारे मुद्दे जो हैं वो उसके सामाजिक पहलुओं से संबंध रखते हैं। दूसरा जो उसका मुद्दा है वो पॉलिटिकल है, जिसमें जो पावर स्ट्रक्चर हमारा उसको कैसे हम शेयर करते हैं। अगर हम इक्वल ढंग से, इक्वल मेजर में पावर स्ट्रक्चर को शेयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनजस्टिस कर रहे हैं और समाज में एक बहुत बड़े तबके के साथ हम इनजस्टिस कर रहे हैं। अब इस पे जब मैं आगे बात करूंगा तो शायद मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि खास करके जब हम सोशल जस्टिस और कास्ट के संबंध में बात करते हैं तो ये इक्वेशन भी समाज में हमेशा एक सा नहीं रहता है। जिनको हम समझते हैं कि वो बहुत मजबूत हैं आज की तारीख में, वो कभी बहुत कमज़ोर हुआ करते थे, और जो कमज़ोर थे वो आज काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। तो ये झगड़ा वास्तव में मजबूत वर्सेस कमज़ोर का है, न कि जाति वर्सेस जाति का है। तो ये एक फंडामेंटल प्रेमाइस है और एक फंडामेंटल फाइंडिंग थी हमारे रिसर्च की, जिस पे फिर जिसने कुछ नए इंसाइट्स हमको दिए। तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अनइक्वल शेयर इन पावर है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट है, और उसके बाद जो एक ग्रोइंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा समाज में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होता चला जा रहा है। और हम in some way or the other, the whole human society, not only the Indian society, but the whole human society, if you look at it on a larger perspective, is becoming a right-centric society, unfortunately. We are asserting our rights a little too much. हम ड्यूटीज़ के बारे में बहुत कम बातें कर रहे हैं आज के समय में, और शायद ये बड़ा अनफैशनेबल हो गया है कि हम किसी को कहें कि तुम अपनी ड्यूटी को समझो और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बात करो। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था कभी कि आप अगर अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक प्रकार से करते रहें तो आपके अधिकार आपके पीछे पीछे बिल्कुल वैसे ही चले आएंगे जैसे गाय के पीछे बछड़ा चला आता है या बछड़े के पीछे गाय चली जाती है, व्हाटएवर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम जो खड़ा हुआ, जिसको हम लिबरल डेमोक्रेसी का इथॉस कहते हैं, और जो एंग्लो सैक्सन जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारे यहाँ आए, लोगों ने अडॉप्ट किए, थोपे गए, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। तो उसकी वजह से हमने राइट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी, बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दिया समाज में, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बहुत ज़्यादा समाज में बढ़े, और उसने भी कहीं किसी स्तर पे जाके इनजस्टिस की स्थिति पैदा कर दी है। तो ये भी एक मुद्दा है जो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। उसके अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। उसके बाद इस जो हमारे यहाँ एक स्क्यूड रेशियो है हैव और हैव नॉट्स की जो हम बात करते हैं, और इस किस्म से तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक स्ट्रगल भी है कि इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक वेलबींग के में हमारा क्या हिस्सा होना चाहिए, हमारी क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसके लिए भी एक लगातार एक जद्दोजहद समाज में मौजूद है। और इन सब की वजह से कहीं पे जाके एक इनजस्टिस और जस्टिस का जो पैराडाइम है ये दोनों साथ में खड़ा हो जाता है। इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं जिसमें हम एथनिक प्रेजुडिसेस की भी बात करते हैं, रेशियल प्रेजुडिसेस की भी बात करते हैं। हम उसके अलावा बहुत सारे आपस में एक दूसरे से भेदभाव, ऊंचा नीचा, ये सारी चीज़ें भारतीय समाज का हिस्सा रही हैं। लेकिन जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो हमें मैं दो मुख्य मुद्दों पे बात करना चाहूँगा सोशल जस्टिस की इस चर्चा में। उसका पहला मुद्दा तो ये है कि व्हाट इज़ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय जस्टिस, और जस्टिस की क्या कोई अवधारणा भारतीय अवधारणा भी है या नहीं है। अब पिछले कुछ वर्षों से जब भी मैं कोई शोध करता हूँ तो एक मेरा अपने आप से एक आग्रह ये रहता है कि उस विषय पे, जिस विषय पे भी मैं शोध कर रहा हूँ, ये जानने की कोशिश करूँ कि उसके बारे में भारतीय अवधारणाएं क्या है। What are the Indian perspectives? Have we as enlightened Indians, argumentative Indians, as Amartya Sen has very rightly defined us, do we have some paradigm of our own, or we don't have it?
या हम हर समय बाहर के विचारों को लेकर के अपनी गाड़ी को खींचते चलते हैं। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आती है, और मैं पिछले कुछ वर्षों से मैं बहुत सजग रूप से इस बात के लिए प्रयासरत हूँ कि जो हमारे इंडियन पैराडाइम्स हैं उनको भी निकाल के देखा जाए। तो जब जस्टिस की अगर हम बात करते हैं, तो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो उसकी कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हम द वेरी आइडिया ऑफ जस्टिस को डिस्कस ना करें। अब when we talk about the very idea of justice, the quest for justice is one of the oldest and most perennial quests that we can think about, we can talk about. And we can also say that it is an essential precondition for the survival of society, social stability and the harmony in the society, or let's say social harmony. इसको पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, और मैं सुन रहा था कुछ देर पहले मेरे जो श्री प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी को, मेरे मित्र श्री जितेंद्र नारायण जी को, इलस्ट्रियस प्रोफेसर, उनको जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने भी कई सारे मुद्दों पे जो है सोशल जस्टिस के उनके मुद्दों पे और जस्टिस के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी हमारी, और बड़ा अच्छा मुझे लगा सुन के उनके विचारों को भी। तो अब जब हम उसकी बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो वास्तव में ये एक फेयरनेस का विचार है। सो व्हाट वी कैन से इज दैट फेयरनेस इज द एसेंस ऑफ जस्टिस, एंड इट इज़ द डिमांड फॉर इम्पार्शियलिटी विच इज़ एट द कोर ऑफ जस्टिस। कि अगर आप जस्टिस कर रहे हैं तो आप इम्पार्शियल हैं, आप निष्पक्ष हैं। और चूँकि मैं इंटरडिसिप्लिनरी विषयों में ज़्यादा उलझ गया हूँ इन दिनों, और वही पढ़ा रहा हूँ, उसी पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे रेफरेंसेस बड़े जब जगहों से आते हैं। तो ये बात करते करते, चर्चा करते करते आपसे मुझे अचानक ध्यान आ गया प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का, जिनकी कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी स्कूल में, पंच परमेश्वर, और उस जिसमें दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता है, और जब उस विवाद को सुलझाने के लिए एक व्यक्ति को जब वो जिम्मेदारी दी जाती है, और जब वो उस आसन पर बैठता है और उसका खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है उस झगड़े में, लेकिन जब वो उस आसन पे बैठ जाता है तो वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के न्याय करने की कोशिश करता है। और अंत में वो कहानी भी इस प्रकार से खत्म होती है, जिसमें शायद ये लाइन थी कि पंच परमेश्वर होता है, और जब वो उस कुर्सी पे बैठ जाता है तो फिर वो सारे राग द्वेष और अपने पर्सनल बायसेस और प्रेजुडिसेस, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। तो न्याय की जो मूल अवधारणा है वास्तव में उस फेयरनेस की अवधारणा है, जिस फेयरनेस की लड़ाई हम लड़ते रहते हैं, और एक लंबी लड़ाई है जो बहुत समय से हम लड़ रहे हैं, आगे भी शायद ये जारी रहेगी। सो फेयरनेस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज एन आइडिया ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ where everything remains in the original status, or what we call status quo. So what I mean thereby is that philosophically speaking, when things are in their original state, they are probably in the best state of their fairness. जो पहला निर्माण प्रकृति ने किया होगा, नेचर ने किया होगा, तो उसमें एक फेयरनेस रहा होगा। और जब हम when we started interacting with our environment, our social environment, our biological, our political environment and so on and so forth, our artificially created environment, then we started making it unfair. तो ये अनफेयरनेस का जो प्रादुर्भाव होता है मेरी समझ से, वो शायद इसलिए होता है कि उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, और ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से अनफेयर हम होते चले जाते हैं। तो ये जो ओरिजिनल स्टेटस है नेचर का, उसमें एक फेयरनेस है। और आज के अगर हम वो टेक्नोलॉजिकल पैरेलल्स में बात करें तो वी कैन कॉल इट द डिफॉल्ट सेटिंग और द वर्जिन सिस्टम, जिसमें सारी चीज़ें एक फेयरनेस के स्टेज में रहती हैं। जहाँ तक भारतीय दर्शन का सवाल है, भारतीय परंपराओं का सवाल है, मुझे लगता है कि शायद ये हमारे जो धर्म की जो अवधारणा है उसके साथ एक जुड़ा हुआ विचार है, जो ट्रेडिशन ऑफ जस्टिस है। It is nothing but an extension of the concept of dharma. And I would like to quote our eminent scholar and one of the most prominent
greatest philosophers and thinkers of our times, Dr. S. Radhakrishnan, who said that, I'm quoting, that dharma, righteousness, is the king of kings. Righteousness is the king of kings. It is the ruler of both the people and the ruler himself and the ruler themselves. It is the sovereignty of the law. यानी धर्म जो है ये व्यक्ति और शासक इन दोनों से ऊपर की चीज है, और दोनों को शासित करने वाली अगर कोई चीज है तो वो धर्म ही है। तो जो जस्टिस की जो हम बात कर रहे हैं, न्याय की जो बात कर रहे हैं, वो उसका एक वो कुछ नहीं है बल्कि हमारी जो पारंपरिक हमारी जो विचार हैं उसके हिसाब से वो धर्म का ही एक एक्सटेंशन है। तो हमने जस्टिस को, हमने न्याय को धर्म, जो कि हमारे लिए शायद सबसे ऊंची अवधारणा है, उसके बराबरी का दर्जा दिया है। तो न्याय की जो अहमियत है, जो महत्व है, वो उस दर्जे का है। दूसरी एक और चीज उसके साथ जो जुड़ी हुई है कि वो ये कहता है कि द आइडिया ऑफ जस्टिस is ingrained in the concept of dharma, which also stands for law and morality, and no state can be devoid of it. दो जो और बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं वो हैं लॉ, कानून, नीति, और मोरालिटी। अब जब आप कानून बनाएंगे तो कानून किस प्रकार से बनाएंगे, कैसा कानून बनाएंगे? कानून क्या मोरल होगा, इमोरल? कानून अपने आप में कुछ भी हो सकता है। आंख के बदले आंख भी एक कानून है, पर क्या वो कानून मोरल है? प्रश्न ये है। और आप कानून बनाते किस लिए हैं, नीतियां बनाते किस लिए हैं? ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ एक ओवरलैपिंग, एक बड़े अजब किस्म से ओवरलैप्ड हैं, एक दूसरे के साथ एंटैंगल्ड हैं, और इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, समझ नहीं सकते जब तक कि हम इनको एक समग्रता में, एक टोटलिटी में देखने की कोशिश ना करें। मैं फिर आना चाहूँगा एक बार, आई वंस अगेन लाइक टू कम बैक टू आवर ओन इंडियन ट्रेडिशन, वेयर यू सी we are part of a cultural and philosophical tradition which believes in the idea of Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world being one family. Then if we have this kind of an idea, such a lofty idea, then can we be unjust to a family, to a member of the family? अगर हमने पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मान लिया तो शायद इनजस्टिस का तो प्रश्न हमने बहुत हद तक एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि अगर परिवार है तो इनजस्टिस नहीं हो सकता, और परिवार का मुखिया, उससे एक्सपेक्टेड है या परिवार के एक सदस्य दूसरे सदस्य के साथ इनजस्टिस ना करें, अन्याय ना करें। जब करें तो न्याय की ही बात करें, जब करें तो प्रेम की ही बात करें, जब करें तब मिलाप की ही बात करें। तो अब जब इतने लॉफ्टी आइडियल्स हैं, उसके बावजूद ये तो सारी थ्योरेटिकल बातें हुई, इसलिए मैंने कहा कि ये पर्सपेक्टिव्स हैं, जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं और प्रैग्मेटिज्म बिल्कुल अलग चीज़ है। क्योंकि जब चीज़ें अपनी रियलिटी में आती हैं, अपनी सच्चाई में आती हैं, तो कुछ और दिखने लगती हैं, तो हमको उनको भी समझना पड़ेगा साथ ही साथ। बट तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ अ जस्ट ऑर्डर, this whole concept of the world being one family or Vasudhaiva Kutumbakam, this very idea just falls flat. ये अर्थहीन हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है, कोई मतलब रहता नहीं है इसका। तो शायद हमने इसीलिए इसको इतना बड़ा दर्जा इसको दिया है। अब जहाँ तक इंडियन ट्रेडिशन का सवाल है, भारतीय परंपराओं का सवाल है, I would like to say that justice believes in respecting others' perspectives, defending in the universal values, and recognizing the intimate metaphysical connection between oneself and the other. मेरे और दूसरे के बीच में क्या कनेक्शन है? अगर हम इस चीज़ को बहुत गहराई से समझ लें तो शायद हम इनजस्टिस नहीं कर सकते, हम अनजस्ट नहीं हो सकते। तो हमारी जो भारतीय अवधारणा है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसके हिसाब से आप देखिए कि किस जस्टिस को, न्याय को हमने क्या दर्जा दिया है। हमने धर्म का दर्जा दे दिया है। शायद सबसे ऊंची चीज है
और धर्म के लिए ही सारी लड़ाई है, धर्म के लिए ही, धर्म ही हम धारण करते हैं, धर्म वो है जो हम धारण करते हैं, धर्म वही है जो हमारे सारे कर्मों से रिलेटेड है, हमारे कर्मों को बेहतर बनाता है, हमको एक दिशा प्रदान करता है। तो शायद इससे बढ़ के तो कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता था, और उसके समकक्ष हमने दर्जा देने की कोशिश की है। एंड उसके बाद जो कुछ और बातें मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि you see, when you look at justice, it is about the idea of distributive equity, which is experienced by men in three forms, and these three forms are the moral, the social and the legal justice. हमें मोरल जस्टिस भी चाहिए, नैतिक न्याय भी चाहिए, सामाजिक न्याय भी चाहिए और कानूनी न्याय भी चाहिए। ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, और जब जस्टिस की बात हम करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव इक्विटी की बात करते हैं कि कैसे हम उसको एक समान ढंग से सबों के बीच में वितरित कर सकें। ऐसा नहीं कि किसी के लिए जस्टिस न्याय कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और है। ये शायद ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। अब इसके लिए हमने कुछ मैन मेड इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट किए, हमने स्टेट को खड़ा किया, हमने कानून को खड़ा किया, और हमने उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे परिवार भी एक रोल प्ले करता है, उसमें समाज भी रोल प्ले करता है, धर्म भी रोल प्ले करता है, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो सारे के सारे उसमें रोल प्ले करते हैं। कहीं ना कहीं जस्टिस के साथ उनका कोई लगाव जुड़ाव होता ही होता है। लेकिन भारतीय परंपरा में हम इस बात को मानते हैं कि नेचर इज द फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ आर्बिटर ऑफ जस्टिस, कि जो अंतिम न्याय होता है वो प्रकृति का ही न्याय होता है। इसलिए कहीं ना कहीं पे, जैसा कि प्रोफेसर नारायण साहब ने आज अपने वक्तव्य में कहा कि जो नेचुरल जस्टिस की जो बात होती है, तो नेचुरल जस्टिस को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक तो नेचुरल ढंग से जो जस्टिस हो, और दूसरी चीज़ जो नेचर का अपना जस्टिस का जो सिलसिला है। तो क्या नेचर अपने जस्टिस के कॉन्सेप्ट में अनफेयर है? ये भी एक समझने की बात है कि अगर हम लार्जर डिज़ाइन को देखते हैं नेचर को, तो क्या वो उसमें अनफेयरनेस उसमें कुछ दिखता है, या वो फेयर होता है? अगर हम उसके पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स को समझें तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। इसलिए हम तो बहुत ईश्वरवादी लोग हैं, और हमने ईश्वर के न्याय में यकीन रखा है। हमारे लिए जो नेचर ऑफ जस्टिस है वो एक कॉस्मिक जस्टिस है, यानी कि किसी ऊपर वाले ने एक जस्टिस जो न्याय किया है, और हम सारे लोग उसको मानने के लिए बाध्य हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दो और इसके साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है रिट्रीब्यूटिव और दूसरा कार्मिक जस्टिस का। अब एक रिट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, उसका मतलब है कि हमने अच्छा किया तो अच्छा, और बुरा किया तो बुरा, हमने बुरा किया तो हमको उसका बुरा परिणाम मिल गया। और कार्मिक जस्टिस जो है वो कहता है, वो कॉजल कनेक्शन की बात करता है। वो कहता है कि अच्छा तुमने किया इसलिए तुमको अच्छा मिला, और बुरा किया इसलिए बुरा मिला। इस जन्म में तुमने अच्छा कर्म किया इसलिए तुम्हें अच्छा परिणाम मिला, और अगले जिंदगी में अच्छा परिणाम चाहते हो तो इस जन्म में अच्छे कर्म करो। अब ये those who are not performing the right karma are supposed to meet the retributive justice. उनको लिए जो न्याय है, जो हमारी अवधारणा में, वो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब ये सारी एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में सारे डिस्कशंस हैं, जिसको समझे बिना हम आगे सोशल जस्टिस की बात नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ हमारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने रॉल्स की भी बात की है, उसका रेफरेंस लाया। मैं आता हूँ, रॉल्स पे भी आता हूँ, और मैं अमर्त्य सेन पे भी आऊँगा, और लोगों की भी चर्चाएँ करूँगा। थोड़ा वक्त है हमारे पास। और उसके बाद फिर जो कुछ और मैं इसके बारे में कहना चाहता था कि ये जो कार्मिक एक्शंस की बात है, आई वुड लाइक टू elaborate it a little more, and I would like to say that our actions in this life they are supposed to determine what we'll do in the next life, and what we do in this life will result
is a result of what we have done. What we are doing in this life is a result of what we have done in our past life. यानी ये एक अजब सा चक्र है, और वो चक्र ऐसा है कि इस बार का परिणाम अगली बार, और अगली बार का परिणाम उसकी अगली बार, तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर में व्यक्ति को डाल देता है और उसको ये समझने के लिए मजबूर करता है कि इससे निकलने का एकमात्र उपाय है कि तुम अपने कर्म अच्छे रखो, और जब तुम अपने कर्म अच्छे रखो इसका मतलब ये हो जाता है कि तुम जस्ट बनो, तुम किसी के साथ इनजस्टिस ना करो, किसी के साथ अन्याय ना करो, भले ही वो व्यक्ति हो, पशु हो या प्रकृति हो। आज तो हम इसकी भी बात करने लगे कि पर्यावरण के साथ भी हमने बहुत अन्याय किया और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। अगर हम मेटाफिजिकल ढंग से इसको इंटरप्रेट करने जाएं तो शायद कहीं ना कहीं से ये बात उस पर कनेक्ट हो जाती है, और ये भी एक कॉजल कनेक्शन में ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि हमारे कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं कि कोरोना भी आता है और बाढ़ भी आती है और सूखा भी आता है और ऐसी आपदाएं हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है वगैरह वगैरह। सो like our European counterparts, we Indians also believed that the reason that of society and a state is to deliver justice. The very reason for the existence of society, of a state, is to deliver justice. हम इसलिए समाज बनाते हैं। प्लेटो ने भी जब अपने रिपब्लिक में इन चीज़ों पे चर्चा की है तो इस बात की तरफ उन्होंने भी इशारा किया है। हालांकि सोशल जस्टिस की चर्चा उसमें नहीं हुई है, जस्टिस की चर्चा हुई है। सोशल जस्टिस एक इज रादर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, but then it has linkages, it has back-end linkages, connections with the very concept of justice. So इससे अलग हाँ, मैं देख रहा हूँ भारतीय सेठा ने भी लिखा है कि कार्मिक जस्टिस इज बेस्ड ऑन गीता। ऑफ कोर्स आई ट्रूली आई फुली एग्री विथ यू, देयर इज नो डिनाइल द फैक्ट। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से हमारे धर्मशास्त्र, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी मान्यताएं हैं, उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। I would also like to refer to Atreya Brahman, which probably for the first time has mentioned the conceptual theory of kingship, maybe in our context. And एक उसमें उदाहरण अत्रेय ब्राह्मण में आता है, सुर असुर जो के बीच की का जो युद्ध है, और उसमें सुर यानी देवता, the gods feel, the titans feel that the gods said, through our lack of king, they conquer us. Who conquers us? The asuras conquer us. So let's make a king, and this is how the king was invented. King को invent इसलिए किया गया क्योंकि वो हमें न्याय दिलाएगा, हमारी रक्षा करेगा, और फिर उसके साथ जो बैकएंड सारी इंस्टीट्यूशंस होंगे वो कहीं ना कहीं उससे खड़े हुए होंगे। एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि जहाँ तक इंडियन ट्रेडिशन का सवाल है, इन आवर इंडियन ट्रेडिशन मोस्ट ऑफ द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स and the what you call the philosophical heights that we have gained not come to us through any kind of what you call theories. As against that, in the Western world, they have created lots of theories. They have theorized their experiences. They have theorized their ideas. हमारे यहाँ जो उसको बताने का तरीका था, वो तरीका ये था कि हम थ्योरी में कन्वर्ट न करके हम उसको मेटाफोरिकली कहते थे, हम कहानियों में कहते थे, हम किस्से कहानियों के माध्यम से वो सारी बातें कह जाते थे जिसको कि आज अगर हम चाहें तो उसके हर एक कहानी से एक थ्योरी जनरेट हो सकती है। सो दैट वाज आवर सोशल नैरेटिव. That is how we used to create our social narrative. This is something that the Westerners have completely lost the hang of. In most of the cases, they have not understood, and most of the times they will blame us for not having any historical references per se, empirical references. And what are these if not empirical references?
Your inability to understand and decipher meaning out of that doesn't mean that we do not have a reference. We have very good references, but we have not stated the way you have stated it. And you want us to state. तो हमने जो कहानियों के माध्यम से हमने इंद्र को खड़ा किया, हमने सुर को खड़ा किया, हमने असुर को खड़ा किया, हमारी सारी थियरीज वहां से आती हैं। हमने अरिस्टोटल की तरह, प्लेटो की तरह, लॉन्जाइनस की तरह, कैंट की तरह उसको और रिसेंटली मार्क्स की तरह बैठ के उसकी डाइडैक्टिक थ्योरीज नहीं लिखी है। हमने दूसरे तरीके से, ताकि एक नए ढंग से, एक बड़े आसान तरीके से एक सामान्य व्यक्ति भी उस बात को समझ ले। अदरवाइज वो कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल शायद जो बड़े बड़े मार्क्सिस्ट हैं वो भी ना पढ़ पाते हैं। अच्छे मार्क्सिस्ट लोगों को मैंने सुना है कि भाई वो ठीक है, मैं मार्क्सिस्ट तो हूँ बाय कन्विक्शन, लेकिन बाय ट्रेनिंग में मार्क्सिस्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो उतनी मोटी किताब में नहीं पढ़ पाता। तो चलिए, ये बहरहाल ये एक अलग विषय है, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड गॉड एंड दिस इज हाउ वी क्रिएटेड द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय, कि अगर जो किंग होगा, जो रूलर होगा, तो उसका काम होगा कि वो न्याय करे। अगर वो रक्षा कर रहा है तो वो रक्षा भी न्याय का ही एक हिस्सा है, एक अंग है। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट अराइजेस फ्रॉम द सोशल नीड फॉर सेल्फ डिफेंस एंड जस्टिस। तो ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिसको कि हमको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम इस पे चर्चा को आगे बढ़ाएं। और फिर हम आते हैं जस्टिस के बाद उसका जो नेचुरल कोरोलरी था, जो हाल के सब वर्षों में इट इज़ रादर 20th सेंचुरी फिनोमेना, जो कि जबकि हमने सोशल जस्टिस को फिर सोशल जस्टिस के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में मानना शुरू किया और उसके बारे में बातें करनी शुरू की। सो none of the history's great philosophers, as a matter of fact, whether he is Plato or Aristotle or Confucius or Averroes or Rousseau or Kant, ever saw the need to consider justice from the social perspective, because they're all classical theoreticians. तो हमने भी अब तक जो बातें की वो एक क्लासिकल कॉन्टेक्स्ट में बात की जस्टिस की, और एक क्लासिकल कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस एक मेटा स्केल पे बात करता है, एक बहुत बड़े स्केल पे बात करता है। वो फिर छोटे कंपार्टमेंटलाइजेशन में जाके और छोटे कंपार्टमेंट्स में जाके बात नहीं करता, एक बड़ी अवधारणा की बात करता है। तो शायद उस अवधारणा के करीब अरिस्टोटल, प्लेटो, कन्फ्यूशियस सारे लोग थे, हम भी थे, हमारी भी जो परंपराएं थी उसके बहुत करीब थी। लेकिन सोशल जस्टिस per se, quote unquote, the word social justice, the term social justice, the very concept of social justice has not been discussed by any of them. So unlike justice in the broad sense, social justice is a much more recent concept. It is a rather recent concept born out of the struggle surrounding the Industrial Revolution. उस पीरियड में ये कॉन्सेप्ट खड़ा होने लगा, एंड विद द एडवेंट ऑफ सोशल आइडियाज, सोशलिस्ट आइडियाज, द सोशलिस्ट आइडियाज, उसके साथ साथ कंकरेंटली ये बात वहाँ पे खड़ी होनी शुरू हो गई। बट आई वुड लाइक टू वंस अगेन अंडरस्कोर द फैक्ट दैट इट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज रूटेड tenaciously in the Anglo-Saxon tradition of and Anglo-Saxon political culture. ये वहाँ से हमने भी इसको इम्बाइब किया, और फिर यूएन ने भी किया, और फिर पूरी दुनिया में ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये बात बढ़ती चली गई, यहाँ तक पहुँच गई। सो सोशल जस्टिस इज डिफाइंड एज द फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन टू एवरीबडी इन द सोसाइटी। ये पूरी जो अवधारणा सोशल जस्टिस की जो मॉडर्न अवधारणा है वो इसी बात की तरफ इशारा करती है। हमारे 20th सेंचुरी, जैसे एक मित्र ने अभी लिखा था, मैं देख रहा था उनके रिमार्क्स आ रहे थे, तो वन ऑफ आवर वेरी एमिनेंट 20th सेंचुरी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, जॉन रॉल्स, he brought up this idea of social justice to the mainstream of political thought, of the global political thought, we can rather say. So Rawls interpreted his idea of justice as fairness. हमने भी वहाँ बात की है, पर इसने भी fairness की बात की है, which is based on the concept of justitium,
which means just institutions, which refers to just institutions rather than just society. तो रॉल्स का जो अप्रोच था वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि हमारे लिए जस्ट इंस्टीट्यूशंस अगर हमारे जस्ट हैं तो सोसाइटी जस्ट हो जाएगी। अब ये एक उन्होंने एक स्टैंड पॉइंट लिया और उसके बारे में फिर उसके एक पॉलेमिक था, उसके काउंटर पॉलेमिक्स भी आए। सो फॉर रॉल्स द फेयरनेस was basically a demand for impartiality, and no one should be able to make law in his or her favor. एक complete impartiality की बात थी, and he said that this is our social contract. उसने social contract को थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा extend करके इस बात की तरफ भी इशारा किया कि this is our social contract with the state. कि स्टेट के साथ जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि आप कानून ऐसे बनाएं जिसमें एब्सोल्यूट फेयरनेस हो और किसी के पक्ष में वो छुपता हुआ लीन करता हुआ दिखाई ना पड़े। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू इंश्योर इफ़ यू आर मेकिंग लेट्स से इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द सीट ऑफ जस्टिस delivering justice. So Rawls' idea of justitium is basically a rule based and it is deontological, जिसको कि हम कहते हैं आचरण शास्त्रीय, एक डिओन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था। एंड ही बिलीव्ड इन फेयरनेस विच इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन। तो अब इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को बड़े खूबसूरती के साथ अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने भी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भी आप कहना चाहें बड़े लोगों में से हैं हमारे समय, तो उन्होंने रॉल्स के कॉन्सेप्ट को परखा और उस पर उन्होंने अपने भी कुछ विचार उसके बारे में डाले। तो अमर्त्य सेन ने उसकी आइडिया को चैलेंज किया, जस्टिशियम के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया और उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट की बात की वो उसको जस्टिशिया कहा। और अमर्त्य सेन का जो आइडिया ऑफ जस्टिशिया था वो कॉन्सिक्वेंशियल था, यानी कि आपने कुछ किया और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये आपको ध्यान में रखना है। जस्टिस इज अबाउट दैट, व्हाट यू डू एंड देन द कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ। सो हिज प्रेफरेंस इज मोर फॉर जस्ट सोसाइटीज रादर दैन जस्ट इंस्टीट्यूशन। सो उन्होंने एक बिल्कुल ऑपोजिट स्टैंड पॉइंट उसके लिए ले लिया। अब ये बात हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी, इसलिए जानबूझ के मैंने इस डिस्कशन को यहाँ पे आप सबके सामने में रखा है, जस्टिशिया और जस्टिशियम, जहाँ हम एक तरफ चर्चा करते हैं इस बात की कि जस्टिस के लिए इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए या सोसाइटी को ही जस्ट बनाना चाहिए। अब ये दोनों दोनों के अपने बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस जस्ट नहीं होंगे तो सोसाइटी में इनजस्टिस होगी, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ जस्ट इंस्टीट्यूशंस खड़े कर देने से सोसाइटी में जस्टिस आ जाती है, लोगों को न्याय मिल जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। इंस्टीट्यूशंस तो आज भी हमारे सामने हैं और बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, और जिस पर्पज़ के लिए हमने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या दूसरे तमाम किस्म के इंस्टीट्यूशंस हों, उस पर अभी हम इसके बाद आगे चर्चा उसी पे करेंगे। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या हमको जस्टिस दिला पा रहे हैं? तो दैट इज़ अ बिग इशू दैट वन नीड्स टू थिंक अबाउट। सो what he, when I say he, I mean Amartya Sen, he believes that it's only the just societies which can create just institutions. अगर सोसाइटी ही जस्ट नहीं होगी, सोसाइटी के अंदर में ही न्याय संगत लोग नहीं होंगे, न्याय संगत विचार नहीं होगा, तो आप कैसे जस्ट इंस्टीट्यूशंस खड़े कर सकते हैं? तो ये भी एक सोचने की बात है हमारे लिए। दूसरी एक और चीज़ की तरफ उन्होंने, एक और पहलू की तरफ जो उन्होंने इशारा किया, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया सा डिस्टिंक्शन किया। ये बात मेरे दिमाग में भी बार बार आ रही थी जब मैं ये चर्चा करना चाह रहा था, तो मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था। उस दौरान भी जब मैं पीएचडी कर रहा था, और जब मैं अब शिक्षक हूँ, जब बात करने जाता हूँ तो थोड़ा रिसर्च करके जाता हूँ। टीवी पे जो चर्चाएं होती हैं वो थोड़ा सा उनका फॉर्मेट अलग होता है, उसमें आप कुछ भी कह के निकल जा सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते कम से कम आपसे
अपेक्षाएं दूसरी होती हैं कि आप थोड़ी गहराई से शब्दों को समझें और तब बात करें। तो चलिए, मैंने वही प्रयास किया है। तो अमर्त्य सेन ने एक बड़ा खूबसूरत सा डिस्टिंक्शन आउटलाइन कर दिया नीति और न्याय के बीच में। और जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है ये बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स, व्हिच इज नीति एंड न्याय, एंड बोथ दीज टर्म्स कैन बी translated as justice, but they both have different connotations. That is what we have to keep in mind. While niti refers to the correct procedures, formal rules and institutions, nyaya is a broader and more inclusive concept. न्याय तो एक एस्पिरेशन है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे संविधान का एक प्रियम्बल है, उसकी प्रियम्बल जो है वो कहते हैं कि संविधान की आत्मा है। तो आप संविधान में कुछ भी करेंगे तो उस प्रियम्बल की दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसी तरीके से जो न्याय है वो एक प्रियम्बल है नीतियों के लिए। और जब हम नीति बनाते हैं तो हम न्याय को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अपने जहन में रखते हुए तब हम नीतियों का निर्माण करते हैं ताकि वो न्याय संगत हो सके। वरना अगर हम ऐसे ही नीतियां बनाते रहेंगे तो नीतियां हमारी सारी फेल करेंगी, क्योंकि उटपटांग नीतियां हम उसके बारे में बनाते चले जाएंगे। सो न्याय एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज अ ब्रॉडर, मोर इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट दैट लुक्स एट द वर्ल्ड एज व्हिच इमर्जेस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन दैट वी क्रिएटेड, एंड दिस इज द फ्रेमवर्क which might give us some insight to appreciate the certain global upsurge for the demand of justice. अमेरिका में भी ब्लैक लाइफ मैटर्स के बड़े मुद्दे खड़े हो गए। SSR सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी जस्टिस की डिमांड होने लगी। अभी बस जस्ट अभी ये तो शायद कॉन्टेम्प्रेरी ही कहें, अभी जो माजरा चल रहा है, हाथरस का केस हुआ, उसमें भी जस्टिस की डिमांड हो रही है और होनी चाहिए, उसको मैं चैलेंज नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि किस प्रकार से हम जस्टिस दे सकेंगे, कैसे दे सकेंगे। अब यहाँ पे जो चैलेंजेस ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस है ये बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है आज के समय में। अब ये मुद्दा जो है प्रैग्मेटिज्म का है। अभी तो मैंने पर्सपेक्टिव्स की बात की थी, अब इसके बाद जब मैं प्रैग्मेटिज्म पे आता हूँ तो सवाल है कि ये सारी बातें, इन सारे विचारों, आदर्शों के होने के बावजूद when we try to deliver justice, are we being just in the process of delivering justice? Big question mark. And why are we failing? What makes us fail? Despite the best of our intentions, despite having the best of institutions, despite having the best of minds, despite having the best of procedures, despite having a wonderful jurisprudence process, फेल तो हम कर रहे हैं, कई जगहों पे कर रहे हैं, और उसका रिएक्शन भी देखने को हमको मिल रहा है समाज में। तो अब सवाल ये है, मैं इन दिनों इन सब बातों को सोचते सोचते बहुत गहराई में जब आप जाके सोचना शुरू करते हैं तो शायद आप बहुत अकेले हो जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी दूसरी दिशा में ड्रिफ्ट कर गए और बाकी सारे लोग एक दूसरे बहाव के साथ जाके तैरना पसंद करते हैं। बहाव के आगे स्विमिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम इज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग। तो आप इस बहाव के साथ तैरना चाहेंगे या उसके मुख्य मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहेंगे, ये एक सवाल है। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरे पास जवाब नहीं है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। आप सारे लोग बहुत विद्वान हैं, बहुत प्रखर हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप सारे लोग मिलकर सोचें, हम सब मिलकर सोचें। पहला सवाल है कि जस्टिस फॉर हूम। दूसरा मेरा सवाल है जस्टिस बाय हूम। तीसरा सवाल है कि हाउ टू डिलीवर जस्टिस, कैसे जस्टिस डिलीवर करेंगे। चौथा सवाल है हाउ टू मेंटेन इक्वानिमिटी इन डिलीवरिंग जस्टिस। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है उससे जुड़ा हुआ कि इंस्टेंट एंड रिट्रिब्यूटिव जस्टिस वर्सेस प्रोसीजरल एंड रिफॉर्मेटिव जस्टिस। उसके बाद और अगले स्तर पे जब सोचते सोचते आपकी सोच पहुंचती है तो आप जस्टिस वर्सेस अनार्की के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि अभी के जो सारे दृश्य आपके सामने उभरते हैं तो लगता है जस्टिस तो कहीं खो गया है।
और खोता चला जा रहा है, और जस्टिस को हम समाज से पूरी तरह से वी आर लूजिंग द वेरी एसेंस ऑफ जस्टिस, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ जस्टिस, द वेरी पर्पस ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस के लिए तो आपके पास समय चाहिए। न्याय तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि हाँ बस इसने गलती की, इसने गलती की, इसको इसी समय पकड़ो, इसी समय गोली मार दो, इससे सजा खत्म दे दो, खत्म करो मामला। ये रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो एक वी आर इनटू अ स्ट्रेंज फेज ऑफ फ्रेंजी, एंड दैट फ्रेंजी इज अबाउट रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, इंस्टेंट रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, अभी का अभी, नाउ एंड हियर। अभी का भी न्याय हो जाना चाहिए, और हर व्यक्ति न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठना चाह रहा है। यह प्रैग्मेटिज्म का सवाल है, कैसे डिलीवर करेंगे हम? हाउ विल बी डिलीवर? दैट्स अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। अब उसमें मीडिया भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक अजब सा चैलेंज बन के उभरता चला जा रहा है। हम तो कहते हैं कि भाई समाज में, और खास करके लिबरल डेमोक्रेसीज में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल है, होनी चाहिए, लेकिन उसके दायरे क्या हैं? किस हद तक का फ्रीडम? किसका फ्रीडम? इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ्रीडम, या फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी? फ्रीडम फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट सर्विस? आप जज एंड ज्यूरी बनते हैं, आप सारा मसला वहीं पे स्टूडियो में बैठ के सेटल करना चाहते हैं, आप जजेस को मौका नहीं देना चाहते हैं, आप एजेंसीज को मौका नहीं देना चाहते हैं। ये प्रैग्मेटिज्म है। इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि इसके क्या डिवाइसेस होंगे, और इस किस्म से जब सोसाइटी अगर जस्टिस के लिए इतना कैकोफोनिक हो जाएगा या उसको बना दिया जाएगा, तो फिर जस्टिस का तो जो पूरा एडिफाइस है, वो पूरा एडिफाइस हमारा ढह जाएगा। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्लास में जाएं और सवाल करें, अपने पीयर से करें, अपने स्टूडेंट से करें, और जब ऐसे फेसबुक लाइव या इस किस्म का कोई अवसर हो तो बिना घबराहट के, बिना फियर के सवाल करें, क्योंकि सवाल करना पड़ेगा। अगर दूसरों को सवाल करने की आजादी है तो कुछ सेंसिबल सवाल हमारे समाज में, सवालों के ऊपर भी सवाल होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट डूइंग इट। हम हर किसी को, क्योंकि एक का जस्टिस दूसरे के लिए इनजस्टिस हो जाता है। हमारे लिए जस्टिस की जो अवधारणा है, मेरा जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, वो दूसरे के लिए इनजस्टिस का हो जाता है। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूं कि मेरी पूरी सहानुभूति, हमारे जैसे लोगों की पूरी सहानुभूति वैसे किसी भी व्यक्ति के लिए होती है, चाहे वो अमेरिका में वो जो जिस अश्वेत व्यक्ति के साथ वो हादसा हुआ, या फिर हाथरस में हुआ, हाथरस के पहले के हादसे हुए, हाथरस के बाद के हादसे भी। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हम चलते चले जा रहे हैं उस हादसों को हम रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि बजाय न्याय दिलाने के हम अन्याय की तरफ समाज को ठेलते हैं, और जो मुख्य मुद्दे हैं समाज के, जिनकी वजह से इनजस्टिस समाज में प्रिवेल करता है, पनपता है, फैलता है, उस पर हम बहस नहीं करते। हम सिर्फ बहस ये करते हैं कि मी फर्स्ट, मैंने सबसे पहले इसको पकड़ा और इसको सजा दी और इसको खत्म कर दिया, आगे से दुनिया में सारी तरफ शांति और शांति और शांति। ऐसा होता है क्या? इज इट पॉसिबल? Is this our approach towards justice? No matter whether it is being demanded in the US, or it's being demanded here in Hathras, or it is demanding anywhere in the world. हम सिर्फ मुद्दों से मुद्दों एक के बाद दूसरे से तीसरे मुद्दे पे लीप फ्रॉग करते रहेंगे, लेकिन हम जस्टिस नहीं दिला पाएंगे। तो जस्टिस दिलाने के लिए हमें किसी में विश्वास रखना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, और सबसे ऊपर जस्टिस दिलाने के लिए हमें समाज में वो व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी जिस व्यवस्था के कारण इनजस्टिस का होना या तो असंभव हो या बहुत कम हो। क्या किया हमने अब तक इतने सालों में? I'm asking this question. I did my research a few decades ago. जब मैं कास्ट कॉन्फ्लिक्ट सोशल जस्टिस पे रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग कुछ मेरे सामने उसके नतीजे आ रहे थे, और
मैं कुछ आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा जो कि लीक से हट के थे, और एक अच्छा खासा 1000 से ऊपर का सैम्पल साइज था मेरे फील्ड रिसर्च का। और जब मैंने कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू जो इनजस्टिस होता है उसकी बात की थी, तो मैंने एक प्रश्न किया था कि भाई अन्याय किसके साथ होता है? अन्याय क्या एक जाति विशेष दूसरी जाति विशेष के साथ करती है या कुछ और होता है? और आपको शायद आश्चर्य होगा ये जान के कि उसमें करीब 72% लोगों ने ये कहा कि जो डोमिनेंट कास्ट होता है वही दूसरों पे जो कमज़ोर होते हैं उसके ऊपर अत्याचार करता है, और डोमिनेंस की परिभाषा बदलती है। डोमिनेंस की परिभाषा समाज में एक नहीं रहती। आज कोई है, कल कोई और होगा, परसों कोई और हो जाएगा। तो ये जो पूरा इनजस्टिस का जो मुद्दा है, ये एक डोमिनेंट क्लास सिंड्रोम है, ये कास्ट सिंड्रोम नहीं है। दिस इज अ क्लास सिंड्रोम। जो भी उस जगह पे पहुंच जाता है वो एट्रॉसिटीज करने लगता है। उसके विचार, उसकी बोलचाल, उसकी सोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके पूरा सोशल अप्रोच एंड एटीट्यूड, एवरीथिंग चेंजेस एंड देन ही थिंक्स दैट ही कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद दैट। वीआईपी कल्चर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनजस्टिस। तो कहां पे आप गिनाएंगे इनजस्टिस को? And if you are not able to address this problem at the grassroots level, which Amartya Sen, people like Amartya Sen are pointing out, which is about justitia, not justitium, जहाँ पे आपको सोसाइटी में रिफॉर्म लाना है, सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू आप जस्टिस की बात करें, तब तक आप जस्टिस अचीव नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल होगा। दूर का ढोल है, बहुत सुहावना लगेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, रोटियां सेकेंगे, उस पर नारेबाजी होगी, जुलूस होगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी टीवी पे, अनाप शनाप उस पर डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, और कल को फिर वही मुद्दा हो जाएगा हमारे सामने। Then we have completely failed ourselves. Sad. नहीं हो सकता ऐसे, ये नहीं चल सकता। तो क्या करें हम? छोड़ दें? पीछे हट जाएं? या गलत बातों पे सवाल उठाएं? बदलती सामाजिक परिस्थितियों को देखें। बहुत सारे मुद्दों के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल होता है, पॉलिटिकली इनकरेक्ट होता है समाज में। और ये जब तक पॉलिटिकल करेक्टनेस के मामले में हम फंसे रहेंगे, जस्टिस से बहुत दूर होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। We'll be moving far away from the concept of justice. Nobody will deliver justice to us. We'll have to deliver justice to ourselves. कोई नहीं कर सकेगा। परिस्थितियां बदल रही हैं। एक वैश्विक समाज में हम रह रहे हैं। वैश्विक समाज में रहने की वजह से, ग्लोबलाइज इथॉस में रहने की वजह से आज आपका पूरा सोशल स्टेटस और तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें दूसरे पैरामीटर से डिफाइन होती हैं कि आपके स्किल का लेवल क्या है, आपके एजुकेशन का लेवल क्या है, आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग क्या है, और ये तमाम चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आप सोसाइटी में किस लेवल पे कहाँ तक मूव करेंगे, कहाँ तक आगे जा सकेंगे। हमने कितना तैयार किया अपने समाज को उसके लिए? हमने तो एक झुंझुना थमा दिया उसके हाथ में, 20% वर्सेस 30% वर्सेस 15% वगैरह वगैरह वगैरह, और समाज के फॉल्ट लाइंस को और ज़्यादा गहरा कर दिया। और फिर कसम खा ली कि इस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज पॉलिटिकली इनकरेक्ट। So till the time we muster the courage to call a spade, to call it out and say, yes, now is the time we should discuss. Let some people disagree. We are not going to be violent, but we are going to be sensible and sensitive and listen to everybody's point of view. We also कैसे समाज को आगे लेकर चले, कैसे इकट्ठा लेकर के चले, कैसे विद्वेष लोगों के बीच से खत्म करें, जात पात, जाति, धर्म, भाषा, रीजनलिज्म। जब तक ये सारी चीजें समाज में पड़ी रहेंगी कैसे जस्टिस होगा? छोटी छोटी बात पे बिहार वर्सेस महाराष्ट्र हो जाता है, छोटी छोटी बात पे जाति वर्सेस जाति हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता है, जबकि वो मुद्दे हिंदू मुस्लिम के होते ही नहीं है। ये सारे क्राइम जो होते हैं, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्राइम अगेंस्ट कास्ट नहीं है। सॉरी,
If there is anybody who belongs to a political party, please listen to it and convey this. ये मुद्दे जातियों के मुद्दे नहीं हैं, ये ह्यूमैनिटी के मुद्दे हैं. आपको एक ह्यूमन अप्रोच के साथ इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा. Then only you will be able to deliver justice, otherwise not. Forget it. Just forget it. Sorry, I was being very emotional about it because somehow I felt I was very emotionally connected with this whole idea and concept of justice. I deliberately thought that मैं इसको दो इसमें डिवाइड करके रखूँगा कि एक साइड जो हाई आइडियल्स हैं, हमारे मोरल्स हैं, और जो हमारी सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, रियलिटीज़ हैं, उसको देखते हुए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या हो सकता है. हम सब मिलके सोचें कि मीडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल हो सकता है. क्यों बजाय जुलूस निकालने के एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम नहीं खड़ा करते कि भाई अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो इमीडिएटली चलिए, अगर पॉलिटिकल लाइन पे ही करना है तो अपोजिशन और तमाम ये वो सारी पार्टियां मिल करके एक ग्रुप बनाएगी, फैक्ट फाइंडिंग ग्रुप बनाएगी, SIT ग्रुप बनाएगी, उसका वो पार्ट रहेगी और तुरंत उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको फैसिलिटेट करेगी. बट लेट द इंस्टीट्यूशंस बी रिस्पॉन्सिबल. प्लीज मेक आवर इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल. जरूरत ये है, इंस्टीट्यूशंस को वीक करने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर पाउंस करने की जरूरत नहीं, उनको 24 घंटा कैमरे के ग्लेयर में डाल करके उनको डराने धमकाने, दैट इज अनदर काइंड ऑफ टेरर. कैसे होगा? तो ये सारी चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी. सोचने के बाद ही हम जस्टिस का एक प्रैग्मेटिक अप्रोच समाज के लिए ला सकेंगे. और यही मेरा आप सबों से निवेदन है, आग्रह है. मुझे लगता है कि शायद कुछ हद तक मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी. आप सारे बड़े प्रबुद्ध लोग हैं. यू आर ऑल वेरी accomplished people who have joined us today, and it was a real pleasure being with you once again. और आगे भी जब मौका मिलेगा मैं निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में आना चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.